क्वेश्चंस सेल मेम्ब्रेन में अभी डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन उसके अलावा और कोई क्वेश्चन? चलिए फिर ये करते हैं। Surrounded by a membrane that separates them from their environment, kind of like how your skin. All cells are completely surrounded by a membrane that separates them from their environment, kind of like how your skin completely covers your body. This cell membrane is sometimes called the plasma membrane, and it acts as a barrier, regulating what gets in and out of the cell. Because the membrane lets some things through but not others, we say that the membrane is semi-permeable. एक मिनट, आप लोग को वीडियो दिख रहा है? यस मैम। अभी शुरू से स्टार्ट करूं? ना साउंड भी समझ नहीं आ रही है। क्लियर नहीं है। अच्छा, मैं वापस स्टार्ट करती हूँ, आप लोग चेक करना। All cells are completely surrounded by a membrane that separates them from their environment, kind of like how your skin completely covers your body. This cell membrane is sometimes called the plasma membrane, and it acts as a barrier, regulating what gets in and out of the cell. Because the membrane lets some things through but not others, we say that the membrane is semi-permeable or selectively permeable. If we zoom in on the membrane, we can see that it is made of several molecular parts. Most of the membrane is made of molecules called phospholipids. Phospholipids have a head made of phosphate and two tails made of fatty acids. The heads are hydrophilic, meaning that they are attracted to water, or literally water-loving. The tails, however, are hydrophobic, meaning that they repel water. Literally, hydrophobic means water-fearing. Because of these properties, phospholipids form two layers known as a phospholipid bilayer, with the hydrophobic tails facing each other and the hydrophilic heads facing the watery external environment and the watery cytoplasm inside of the cell. So the water lovers get to be next to water, and the water fearers can hide away from it. A perfect arrangement. The phospholipid bilayer is the main component of the membrane, and it is largely responsible for making the membrane semi-permeable. Basically, the smaller and less charged something is, the easier it is to pass through the phospholipid bilayer. Bigger, more charged things have a harder time. A second membrane component is cholesterol. Although people often think of cholesterol as a bad thing, it's actually a very important part of cell membranes, where it helps to stabilize the membrane and make it better at controlling what can pass through it. Proteins are another important part of the membrane. They do many functions, but one of the most important ones is transporting materials across the membrane, especially if they have a hard time passing through the phospholipid bilayer. A fourth membrane component is carbohydrates. These are often involved in cell identification. Blood types, for example, are the result of membrane carbohydrates attached to proteins. These help you to identify blood that belongs to you and distinguish it from foreign invaders. All of these components work together to make the plasma membrane that surrounds all cells, a critically important barrier needed for all life on Earth. If you enjoyed this video, please like it, subscribe, and check out the other free games, quizzes, and interactive learning experiences at Bioman Biology. आवाज आई ठीक से? ये आप लोग देख लेना, मेन उसका जो डायग्राम तो समझ में आ रहा था ना कि फॉस्फोलिपिड लेयर कैसे दो लेयर का बना रहता है। हम लोग उसको सेमी परमेबल बोलते हैं क्योंकि कुछ चीजें जाती है, कुछ चीजें नहीं। लेकिन आप लोग बाद में भी यूट्यूब पे जाके सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन करके देखिएगा तो काफी सारे वीडियोस है। बट ये वाला बेसिक किसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये हम लोग पिछले बार किए थे। अब हम लोग आज वाला करते हैं, और कोई वीडियो नहीं है इसलिए और आवाज का नहीं होगा। ओके, स्लाइड्स दिख रहे हो? यस मैम, दिख रहे हैं। ओके देन, आज हम लोग कर रहे हैं वही सेकंड पार्ट, टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें मेन जो अलग अलग टिश्यूज हैं, हमारा एपिथेलियल टिश्यू,
कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और बाकी जो सपोर्टिंग टिश्यूज रहते हैं। नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू ये सब हम लोग डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में जब हम लोग नर्वस सिस्टम और या फिर मस्कुलर सिस्टम करेंगे तब वो सब डिटेल में डिस्कस हो जाएगा। ये वाले चैप्टर में हम लोग मोस्टली एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे डिटेल में। तो टिश्यूज बेसिकली इसका डेफिनेशन होता है, इट्स डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स एंड एसोसिएटेड इंटरसेल्युलर मटेरियल्स स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन और फंक्शंस। तो बेसिकली सारे सेल्स एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ जो सेल्स सब साथ में मिलकर एक फंक्शन कर रहे हैं, वो सारे सेल्स और उनके बीच में जो मटेरियल है जिसको हम लोग इंटरसेल्युलर मटेरियल्स कहते हैं, ये सब मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। और जो मेन टिश्यूज, प्राइमरी टिश्यूज है, वो है एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। हर टिश्यू का अपना स्पेशलाइजेशन होता है, अपना अलग अलग टाइप का सेल्स होता है, अलग टाइप का इंटरसेल्युलर मटेरियल होता है और फंक्शन भी अलग होता है बेस्ड ऑन कौन सा सेल है। जो एपिथेलियल टिश्यू है, इसको हम लोग एपिथेलियम भी कहते हैं। ये जो हमारा पूरा जो आउटर लेयर ऑफ बॉडी है, जो पूरा स्किन है, ये सब एपिथेलियल टिश्यू है। और इंटरनल जो कवरिंग है, दैट इज ऑल्सो एपिथेलियल टिश्यू। तो जैसे मुंह के अंदर या हमारा जो पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है, उसका अंदर का पूरा लेयर, हमारा लंग्स जिस कैविटी में, उस कैविटी का जो सर्फेसेस वगैरह है, या एब्डोमिनल कैविटी का जो अंदर से सर्फेस है, ये सब एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड है। तो जो भी सर्फेस होएगा, या इंटरनल सर्फेस या एक्सटर्नल सर्फेस, वो सब एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड है। जो हम लोग के ग्लैंड्स होते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड्स या फिर अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स, वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बने रहते हैं। तो कुछ सेल्स जो स्पेशलाइज करके कुछ हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं या अलग अलग चीज सिक्रीट कर रहे हैं, वो सब ग्लैंड्स बनाते हैं, वो भी पार्ट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जो बेसिक स्ट्रक्चर एपिथेलियल टिश्यू का होता है, वो है कि जो लेयर है, सेल का लेयर है। अब इस वाले डायग्राम में हमने एक लेयर बनाया सेल का, बट वो हम लोग बाद में भी टाइप्स करेंगे। वो या तो एक लेयर हो सकता है या मल्टीपल लेयर्स होता है सेल का। और हमेशा जो सबसे नीचे वाला लेयर है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहता है। जो एपिथेलियल टिश्यू का एक चीज जो कैरेक्टरिस्टिक है कि वो लूज नहीं है, मतलब सारे सेल्स एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए रहते हैं। इसके चलते एपिथेलियल टिश्यू में बहुत सारा जगह नहीं है ब्लड वेसल्स वगैरह के लिए या लिम्फ वेसल्स वगैरह के लिए अंदर जाने के लिए बहुत जगह नहीं है। तो जितना भी न्यूट्रिशन आता है या एक्सक्रीशन जो हो रहा है, जो हम लोग का ब्लड में ट्रैवल कर रहा है, वो सब मोस्टली डिफ्यूजन के थ्रू एपिथेलियल टिश्यू में जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे लूज कनेक्टिव टिश्यू रहेगा, और इस कनेक्टिव टिश्यू में सारे ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स वगैरह बिल्कुल एबंडेंट रहते हैं, जहां से डिफ्यूजन से सब हमारा न्यूट्रिशन एपिथेलियल सेल्स पे जाता है। मेन फंक्शन जो है एपिथेलियल टिश्यू का, वो है प्रोटेक्शन, क्योंकि ऐसा टाइट बैरियर बनाता है। कोई भी फॉरेन बॉडीज वगैरह जो है, बैक्टीरिया, वायरसेस, उन सबको रोकने का काम, सबसे पहला काम एपिथेलियल टिश्यू का प्रोटेक्शन है। उसके अलावा क्योंकि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में है या अलग अलग बॉडी के सर्फेसेस में है, वहां पर वो एब्जॉर्प्शन कर रहा है न्यूट्रिशन का, फिल्ट्रेशन कर रहा है। किडनी में जो एपिथेलियल टिश्यूज है, वहां से एक्सक्रीटरी मटेरियल अंदर बाहर जाना। और इसके अलावा स्किन हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है, बिगेस्ट सेंसरी ऑर्गन इज स्किन, तो सेंसरी फंक्शन भी है एपिथेलियल टिश्यू का। अब एपिथेलियल टिश्यू का हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? सबसे पहला क्लासिफिकेशन है, या तो सिंपल होएगा या स्ट्रैटिफाइड होएगा। अगर बस एक लेयर में है तो उसको हम लोग सिंपल एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। अगर एक से ज्यादा लेयर है तो उसको हम लोग स्ट्रैटिफाइड कहते हैं। और दूसरा क्लासिफिकेशन एपिथेलियल टिश्यू का हम लोग शेप पे करते हैं, या तो स्क्वामस, क्यूबॉइडल या कॉलमनर। जो स्क्वामस सेल्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट सेल्स होते हैं, ऊपर से देखने में उनका शेप अलग अलग शेप का दिखता है, बट वो साइड से आप देखिएगा तो बिल्कुल फ्लैट रहता है, और जहां पे न्यूक्लियस है वहां पे बल्ज रहता है सेल में। स्क्वामस हमारा अगेन सिंपल स्क्वामस हो सकता है या स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। अगर एक लेयर है तो सिंपल स्क्वामस, और अगर मल्टीपल लेयर्स है तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। एक चीज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में, हर लेयर
स्ट्रैटिफाइड नहीं रहता है। नीचे के जो लेयर्स है मोस्टली वो क्यूबॉइडल या कॉलमनर रहते हैं, और फिर वो जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं पतले होते जाते हैं, और फिर जो सबसे ऊपर वाला लेयर है वो फ्लैट स्क्वामस सेल जैसा है। जो क्यूबॉइडल सेल्स है हमारे, अगेन सिंपल क्यूबॉइडल, बस एक लेयर। इसमें जो हाइट और विड्थ है सेल का वो सेम रहेगा, लेकिन ऊपर से इट्स नॉट अ कंप्लीट क्यूब। आप ऊपर से देखिएगा तो कभी वो गोल दिखता है, कभी पॉलीगोनल दिखता है, हेक्सागोनल दिखता है, बट अगर साइड से हम लोग क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हाइट और विड्थ सेम रहता है। और अगर वो एक से ज्यादा लेयर है तो फिर वो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और तीसरा हमारा कॉलमनर, फिर से सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, बस एक लेयर है जो लंबे सेल से, इसमें हाइट जो है वो विड्थ से ज्यादा होता है। ये हमारे इंटेस्टाइन में बहुत कॉमन है, और इंटेस्टाइन में क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जो हमने पहले किया था कि सीलिया या माइक्रोविलाई रहता है, ये काफी कॉमन है क्यूबॉइडल में। इसलिए जो डायग्राम बना उसमें आप ऊपर जो लाइंस देख रहे हैं वो सीलिया है या माइक्रोविलाई विलाई। जब एक से ज्यादा लेयर हो जाएगा क्यूबॉइडल का तो उसको हम लोग स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर का एक से ज्यादा लेयर, उसको हम लोग स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। और एक स्यूडो स्ट्रैटिफाइड होता है, इसमें है ये बस एक ही लेयर सेल का, लेकिन क्योंकि सेल्स का हाइट और शेप अलग अलग है, जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो फिर हम लोग को न्यूक्लियस जो है एक से ज्यादा लेयर में दिखता है। और अगर हम उसका सेल का बाउंड्री नहीं दिख रहा है तो देख के लगेगा कि ये स्ट्रैटिफाइड है, बट एक्चुअली बस एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, तो उसको हम लोग स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कहते हैं। ये सिंपल एपिथेलियम जो हमने अभी किया, सिंगल लेयर है फ्लैट सेल्स का, जो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रहता है, उसको हम लोग बेसल लैमिना भी कहते हैं। मेन इसका एब्जॉर्प्टिव और सिक्रीटरी सर्फेसेस पे रहेगा। जो एल्वियोलाई का जो अंदर जो लाइनिंग है, जो हमारे हार्ट का जो बाहर जो लेयर है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं, उसका लाइनिंग, जब हार्ट में एपिथेलियम रहता है उसको हम लोग मीजोथेलियम कहते हैं। ओ सॉरी, जो पेरिटोनियम का जो है, जो हार्ट का है उसको हम लोग एंडोकार्डियम कहते हैं। जो अंदर का जो लेयर रहता है हार्ट का उसको एंडोकार्डियम कहते हैं। और हमारा जो पेरिटोनियम, जो एब्डोमिनल कैविटी है, वहां पर जो अंदर रहता है उसको हम लोग मीजोथेलियम कहते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर वाला लेयर अगेन सिक्रीटरी और एब्जॉर्प्टिव सर्फेस है, उसको हम लोग एंडोथेलियम कहते हैं। ये सब नाम अलग अलग है बेस्ड ऑन कहाँ पर वो प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, लेकिन सब है वही एक सिंगल लेयर स्क्वामस एपिथेलियम का, सिंपल एपिथेलियम या स्क्वामस एपिथेलियम। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पतला सा लेयर रहेगा एक सेल का, और उसके नीचे लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स है, तो इसके अक्रॉस डिफ्यूजन बहुत जल्दी होगा। हमारे इंटेस्टाइन में ये जो लेयर रहता है, जो भी खाना अंदर जा रहा है वो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड वेसल्स में चला जाता है। अगला जो है हमारा सिंपल एपिथेलियम में स्क्वामस के बाद है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल अगेन जो हमने किया वो थोड़ा सा मोटा होएगा स्क्वामस से, हाइट इज इक्वल टू विद क्रॉस सेक्शन पे। ये जो क्यूबॉइडल है, एक चीज इसका स्पेशल है कि जब ये ऐसे एक लेयर है क्यूब का, वो जब अपने में ही ऐसे गोल घूम के पाइप जैसा बना देता है तो वो ट्यूब्यूल्स बनाता है। और ग्लैंड वगैरह में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो ट्यूब्यूल्स रहता है वो हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जो फॉलिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, ओवेरियन सर्फेस के जो ग्लैंड्स रहते हैं, कोरोइड प्लेक्सस जो आईज में हमारा लेंस का पिगमेंट लेयर ऑफ सेल्स है, वो सब क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। किडनी में जहां पर वो एब्जॉर्प्शन का काम करता है, जो ट्यूब्स, जो नेफ्रॉन के जो ट्यूब्स रहते हैं वो भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बने हुए रहते हैं। और तीसरा हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इज कॉलमनर एपिथेलियल, जिसमें हाइट इज मोर देन द विड्थ। अब ये सब में ऊपर से बिल्कुल शेप ऐसे स्क्वायर नहीं है, सब ऊपर से देखिएगा तो फिर अलग अलग शेप रहता है, लेकिन जो शेप हम लोग क्यूब या कॉलम बोल रहे हैं वो साइड से क्रॉस सेक्शन पे रहता है। सिंपल क्यूबॉइडल हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्टमक का जो अंदर का सरफेस है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का सरफेस है, वो सब सिंपल है। सिंपल मतलब उसमें ऊपर कोई सीलिया नहीं है, बस प्लेन कॉलमनर एपिथेलियम है। सीलिएटेड अगर उसमें ऊपर सीलिया लगा हुआ रहेगा तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यूट्रस में, जहां पे वो मूवमेंट कॉज कर रहा है, म्यूकस वगैरह जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चलता है, ये सारे सीलिया उसको बाहर निकालते हैं। मिडल ईयर, ऑडिटरी कनाल, ये सब में सीलिएटेड
क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ब्रश बॉर्डर हमारे गॉल ब्लैडर में रहता है, जो उसमें माइक्रोविलाई और विलाई, तो सीलिया थोड़ा सा बड़ा होएगा, माइक्रोविलाई बिल्कुल छोटा छोटा ऐसे ब्रश जैसा बॉर्डर रहेगा, और विलाई बीच में रहता है, सीलिया और माइक्रोविलाई के बीच में। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो बॉर्डर है या फिर हमारे गॉल ब्लैडर में जो है, वो सब विलाई और माइक्रोविलाई है। उनका मेन फंक्शन ट्रांसपोर्ट नहीं है, उनका मेन फंक्शन है कि वो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं उस ब्रश बॉर्डर के चलते। क्यूबॉइडल वगैरह का फंक्शन रहेगा सिक्रीटरी, हमारा जो इंटेस्टाइन का गॉबलेट सेल्स है, आगे हम लोग देखेंगे, बट बीच बीच में जो कॉलमनर सेल्स रहते हैं, कुछ सेल्स है जो म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको हम लोग गॉबलेट सेल्स कहते हैं। ये सब म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं, वो उसका मेन फंक्शन है। जो सीलिया है वो म्यूकस को मूव करता है, और माइक्रोविलाई जो है, जो और छोटा रहता है, वो एब्जॉर्प्शन का सरफेस बढ़ाने के लिए है। जब आप स्लाइड देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हम लोग यूजुअली H&E स्टेनिंग करते हैं। उसमें जो हमारा पिंक और पर्पल कलर का दिखता है, जितना भी इओसिनोफिलिक है वो सब पिंक दिखता है। तो हमारा जो सेल का साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सब पिंक दिखता है। न्यूक्लियस जो है वो हम लोग का बेसोफिलिक कहते हैं उसको, वो हम लोग को माइक्रोस्कोप के नीचे पर्पल कलर का दिखता है, क्योंकि उसमें क्रोमैटिन मटेरियल रहता है, वो जो स्टेन को एब्जॉर्ब करता है वो पर्पल स्टेन करता है। तो जब हम सिंपल स्क्वामस को देखते हैं, ये जो पहला वाला डायग्राम है, ये लंग का एल्वियोलाई है। तो एल्वियोलाई बेसिकली एयर सैक्स है। तो हम लोग बस साइड में जो उसका जो कवरिंग है, उसमें जो सेल्स है, जो स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स है, वो दिख रहे हैं। वो आपको बिल्कुल पतले फ्लैट सेल्स दिखेंगे, और बस जहां पे जो आपको जो पर्पल डॉट्स दिख रहा है वो न्यूक्लियस है। वो जहां पे बस न्यूक्लियस है वहां पे थोड़ा सा बल्ज है, उसके अलावा बिल्कुल फ्लैट है। ये आपका पहला वाला जो पिक्चर है, दैट इज अ क्रॉस सेक्शन, और जो दूसरा वाला है वो उसका ऊपर ऊपर से सरफेस व्यू है। अलग अलग आपको स्लाइड्स, और उसके बीच में जो पर्पल जो दिख रहा है वो उसका न्यूक्लियस है बीच में। कोई क्वेश्चन था? ओके, ठीक है। तो ये है जो हमारा स्लाइड जैसा दिखता है स्क्वामस एपिथेलियम का। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो हमें स्लाइड में ऐसे दिखेगा। तो जो पहला वाला है, ये थायराइड का फॉलिकल्स है। बीच में जो पिंक कलर का स्टेन कर रहा है, वो बस जो इंटरसेल्युलर मटेरियल या जो सिक्रीशन हुआ है थायराइड फॉलिकल्स में, वो है। जो मेन जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो ब्लैक एरोज पहले वाले में, वो हमारे क्यूबॉइडल सेल्स है। तो एक लेयर को एक है, और दूसरे वाले का जो दूसरा, उसके चलते हम लोग को दो लेयर दिख रहा है। एक फॉलिकल का जो एक लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स उसको चारों तरफ से कवर करता है। जो दूसरा वाला है वो हम लोग का सलाइवरी ग्लैंड का जो डक्ट्स है, उसमें भी क्यूबॉइडल सेल्स है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो हम लोग को बहुत ठीक से नहीं दिखता है स्लाइड में, आप देखिएगा तो, लेकिन न्यूक्लियस अच्छे से दिखता है। तो न्यूक्लियस की पोजीशन से हम लोग को पता चल रहा है कि सेल का क्या शेप है, और दिस इज क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल। वो खुद से गोल बनकर ट्यूब्यूल्स बनाता है। ये हमारा कॉलमनर एपिथेलियम है। अब कॉलमनर एपिथेलियम सबसे अबंडेंट है हम लोग के इंटेस्टाइन में। तो जो पहला वाला है वो स्टमक का म्यूकोसा है, उसमें हम लोग का सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है, उसमें कोई सीलिया या विलाई नहीं रहता है। पर जो बिल्कुल ऊपर जो आपको दिख रहा है, लाइन से बिल्कुल सटे हुए जो सेल्स हैं, और उसके ऊपर न्यूक्लियस हम लोग को दिख रहा है, पर्पल पर्पल डॉट्स, वो सारे सिंपल क्यूबॉइडल है, बिल्कुल जो सरफेस पर आए। जो सेकंड वाला, उसमें अगेन हम लोग को सरफेस दिख रहा है, और उसमें जो बीच में जो गैप्स दिख रहे हैं आपको, वो सारे गॉबलेट सेल्स हैं। तो बीच बीच में ये भी एक टाइप के क्यूबॉइडल सेल्स हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। तो जो गॉबलेट सेल्स हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बिल्कुल फैले रहते हैं, अलग अलग जो पिट्स बनता है। सिंपल एपिथेलियम के बारे में कोई क्वेश्चंस? ये स्लाइड्स वगैरह आपके बुक में भी है, बिल्कुल ये वाले नहीं होंगे, बट सिमिलर स्लाइड्स है, तो उसको भी जाके रिवाइज करिएगा कि कैसे, कौन से सेल्स कैसे दिखते हैं माइक्रोस्कोप में। अब जो दूसरा हमारा है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, हमने सिंपल एपिथेलियम कर लिया, अब हम स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में आते हैं। ये जो है, ये है एक्चुअली एक लेयर ऑफ सेल, लेकिन जो अरेंजमेंट के चलते जो सेल्स
न्यूक्लियाई हम लोग को माइक्रोस्कोप में 2-3 लेयर में दिखते हैं, तो देख के लगता है कि स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है, बट इट इज अ सिंपल एपिथेलियम, तो इसलिए इसका नाम है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। कभी कभी उसमें ऊपर सीलिया या स्टीरियोसीलिया भी होएगा, बट अगर कोई कुछ नहीं है सीलिया विलाय तो फिर इट्स अ सिंपल स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। जो सेल का हाइट होता है वो डिफरेंट रहता है, लेकिन हर सेल नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहता है, इसलिए हम लोग सिंगल लेयर कह रहे हैं कि सारे सेल ऊपर तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन नीचे से सारे सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहते हैं। ऑडिटरी ट्यूब्स में हमारा स्यूडो स्ट्रैटिफाइड है, टेस्टिस, मेल यूरेथ्रा, ट्रेकिया में जो सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड है, जो ट्रेकिया हमारा जो 2 लार्ज ब्रोंकाई बनाता है उसमें भी सीलिएटेड है, जो हमारे म्यूकस को मूव कर रहा है। एपिडिडाइमिस में स्टीरियोसीलिया है, जो मूवमेंट में हेल्प करता है। फंक्शन अगेन सिक्रीटरी फंक्शन है, जो नीचे वाले जो बेसल सेल्स है, जो नीचे से अटैच्ड है लेकिन ऊपर तक नहीं है, वो एक टाइप के स्टेम सेल्स है। तो जैसे जैसे हमारे ऊपर वाले सेल्स झड़ जाते हैं या फिर अगर डैमेज होते जाते हैं, तो ये जो नीचे से छोटे वाले सेल्स है वो ग्रो कर कर उनका जगह लेते रहते हैं, एंड देन न्यू सेल्स स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। तो इसीलिए जो लोअर स्टेम सेल्स दे रिप्लेस द टॉल सेल्स जैसे जैसे उनका वेयर एंड टेयर होता है। और सीलिया अगर सीलिएटेड है जैसे हमारा ब्रोंकस में या ट्रेकिया में, वो म्यूकस को मूव करने में हेल्प करता है। ये है एपिडिडाइमिस का सेल है, ये हम लोग को स्यूडो स्ट्रैटिफाइड दिखा रहा है। तो देखने में आपको न्यूक्लियस ऐसे 2 या 3 लेयर्स में दिख रहे हैं, तो अगर हम लोग को सेल मेम्ब्रेन क्लियरली नहीं दिखता है तो देख के लगता है कि इट इज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, बट इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल एंड दिस इज अ स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। जो ऊपर वाला जो आपको लाइट पिंक कलर का दिख रहा है वो स्टीरियोसीलिया है, हमारे ऊपर टॉप पे सारा स्टीरियोसीलिया अटैच्ड है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद एक स्पेशलाइज टाइप का एक स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम रहता है जिसको हम लोग ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं। अब मेन ट्रांजिशनल एपिथेलियम में क्या होता है कि ये स्ट्रैटिफाइड है, नीचे के जो सेल्स है वो क्यूबॉइडल होते हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते वो धीरे धीरे फ्लैट होते होते ऊपर वाले अम्ब्रेला शेप के होते हैं। मेन जो इसका फंक्शन है ट्रांजिशनल एपिथेलियम का, ये क्या करता है कि ये किसी भी जिस ऑर्गन में ये उसको स्ट्रेच करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये मल्टी लेयर्स ऑफ सेल है। हम और सबसे कॉमन ये हमारे यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी ब्लैडर में रहता है, जिसको हम लोग यूरोथीलियम कहते हैं। तो जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर का साइज बढ़ता है यूरिन के साथ, ये जो मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल है वो फैल जाते हैं और 10 से मान लीजिए 5 लेयर ऑफ सेल हो जाएंगे, बट वो बेसिकली हेल्प करता है कि हमारा ऑर्गन का साइज बड़ा हो जाए। तो इस वाले स्पेशलाइज्ड ट्रांजिशनल एपिथेलियम को हम लोग यूरोथीलियम, जो स्ट्रेचेबिलिटी देता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेबिलिटी सेल्स जो है वो खुद को रीअरेंज कर लेते हैं, अगर ज्यादा 5-10 लेयर से वो कम होकर वो करते हैं। तो दूसरा इसका मेन फंक्शन है, क्योंकि ये सारे सेल्स इतने साथ में सटे हुए हैं, ये लीकेज प्रिवेंट करते हैं। जैसे जैसे यूरिन बढ़ता जा रहा है ब्लैडर में, स्ट्रेच होके पतला होता जा रहा है, बट वो स्टिल पूरे कवरिंग को टाइट रखता है कि यूरिन लीक कर कर बॉडी कैविटीज में नहीं जाए। ये हमारा सारा सिंपल एपिथेलियम का अलग अलग टाइप्स हो गया। कोई क्वेश्चन अभी तक? अब हम लोग कर रहे हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अब स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम जो है, सबसे पहला टाइप जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, इसमें नीचे वाले लेयर स्क्वामस नहीं रहते, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो फ्लैट होते जाते हैं सेल्स, एंड ऊपर वाले सेल्स आर स्क्वामस इन नेचर, नीचे वाले कैन बी कॉलमनर और क्यूबॉइडल। धीरे धीरे वो ऊपर जाते जाते फ्लैट हो रहे हैं। जो हमारे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है, ये तो नॉन केराटिनाइज्ड होंगे या केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होएगा। जो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम रहता है, ये हमारा वो सब सर्फेसेस में रहेगा जहां पे सर्फेस मॉइस्ट रहता है। तो जो ऊपर के सेल्स है वो भी लिविंग सेल्स है। हमारा जो माउथ के अंदर टंग, जो भी सर्फेसेस जहां पे म्यूकोसा है, जो वेट सर्फेसेस है, वो सारा
नॉन केराटिनाइज्ड है। आपका जो कॉर्निया है, क्योंकि वो वेट रहता है, सेल्स को अलाइव रहने के लिए दे नीड दैट मॉइस्चर, इसलिए वो नॉन केराटिनाइज्ड है। लेकिन जो ज्यादा कॉमन, जो हम लोग के स्किन में जो सारा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है, वो केराटिनाइज्ड है। अब इसका क्या मतलब है कि जो अपर मोस्ट लेयर है वो सब सारे डेड सेल्स के बने हुए हैं। धीरे धीरे जैसे ये ऊपर जाते रहते हैं, उसका न्यूक्लियस लूज हो जाता है और उसमें एक सब्सटेंस डेवलप हो जाता है जो उसको हार्ड बनाता है, जिसको हम केराटिन कहते हैं। तो केराटिन के चलते ऊपर वाले लेयर्स, इट्स अ डेड लेयर ऑफ स्किन। जो हमारा पूरा बॉडी का जो स्किन है, दैट इज केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये दोनों जो हमारे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है, वो सारे एरियाज में है जहां पे फ्रिक्शन ज्यादा है। ऊपर वाले सेल्स कॉन्स्टेंटली मर मर के गिरते जा रहे हैं और जो नीचे वाले सेल्स है वो उसको रिप्लेस करते जा रहे हैं, इसीलिए वो हमेशा नीचे से ऊपर हमारे सेल्स ग्रो करते जा रहे हैं। मेन फंक्शन स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का है प्रोटेक्शन। जितने वायरसेस है, बैक्टीरिया है, सबको हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाए, वो प्रोटेक्ट करने के लिए उनका मेन फंक्शन है। ये वाले स्लाइड्स है। जो पहला वाला है ये हमारा नॉन केराटिनाइज्ड है और ईसोफेगस का है। उसमें जो ऊपर, सबसे ऊपर वाला लेयर है, वो आपको दिख रहा है कि फ्लैट है, स्क्वामस है और उसमें भी न्यूक्लियाई है, वो हमारे लिविंग सेल्स है। ये दोनों जो ऊपर नीचे, जो लेफ्ट साइड पे दोनों पिक्चर्स हमारे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ऊपर तक लिविंग सेल्स है। जो राइट साइड में है ये हमारा केराटिनाइज्ड स्किन का क्रॉस सेक्शन है। इसमें एक पॉइंट के बाद देखिए सारे न्यूक्लियस गायब हो गए हैं और वो जो डार्क पिंक सब्सटेंस है वो केराटिन है, वो भी पिंक स्टेन करता है। तो ऊपर वाला पूरा लेयर है वो डेड सेल्स है, केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम का, और नीचे जो है हमारे क्यूबॉइडल कॉलमनर जो उसको कॉन्स्टेंटली रिप्लेस कर रहे हैं। ऊपर वाले सेल्स जैसे जैसे वेयर एंड टेयर के साथ मरते जाएंगे, हटते जाएंगे, नीचे वाले सेल्स उनको रिप्लेस करते रहते हैं। अब जो ये हमारा स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस हुआ। स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है, मेन इनका हमारे डक्ट्स में रहते हैं। जो ग्लैंड्स वगैरह रहते हैं उसका अंदर का सरफेस और उसका जो डक्ट्स रहता है, वो सब कॉलमनर और क्यूबॉइडल। मेन वो हम लोग को कॉलमनर या क्यूबॉइडल क्यों चाहिए, क्योंकि उनका कुछ सिक्रीटरी फंक्शन भी रहता है। वो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमारे ग्लैंड से एक्सक्रीट हो रहे हैं। लार्ज डक्ट्स जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे कि हमारा स्वेट ग्लैंड्स है, पैनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड, ये सब क्यूबॉइडल और कॉलमनर। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कुछ क्यूबॉइडल है कुछ कॉलमनर है। ये दोनों साथ में ही रहते हैं, कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल। प्रोटेक्शन जो हमारे सारे एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन है, प्रोटेक्शन इज मेन, बट मेन जो क्यूबॉइडल और कॉलमनर का है दैट इज सिक्रीशन एज वेल। एक इसका एप्लीकेशन है कि जब ये वाले सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो करने लग जाते हैं तो वो लोग ट्यूमर्स कॉज करते हैं। एंड अगेन ट्यूमर्स कैन बी, अगर वो एक ही जगह पे सीमित है तो फिर इट इज नॉन कार्सिनोजेनिक, लेकिन अगर वो फैल गए तो फिर वो कार्सिनोजेनिक ट्यूमर्स होंगे। और अगर जो उसके पार्ट्स निकल के आपके बॉडी में कहीं और जाकर इम्प्लांट हो गए और फिर वहां ग्रो कर रहे हैं तो उसको हम लोग मेटास्टासिस कहते हैं। ये सारे एपिथेलियल टिश्यू के नीचे हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये जो बस एक मेम्ब्रेन है, दिस इज नॉट मेड ऑफ सेल्स, दिस मेम्ब्रेन इसमें है। ये एपिथेलियल सेल्स हमेशा इसके ऊपर रहेगा। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का फंक्शन है, एक कि वो सबको समेट के रखता है, सारे सेल्स को उससे चिपके हुए रहते हैं, तो वो अडेशन प्रोवाइड करता है, उनको साथ में सटा के रखता है। और दूसरा, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे हमारा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें सारे ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स है, तो फिर वो हम लोग को डिफ्यूजन में हेल्प करता है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन कंट्रोल करेगा कि कौन से सब्सटेंसेस इजिली डिफ्यूज कर रहे हैं और कौन से जो बहुत ज्यादा बड़े हैं वो डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे एपिथेलियल टिश्यू में। ये हमारे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस जो लेफ्ट साइड पर है, ये फेरिंग्स का क्रॉस सेक्शन है। ये जो अगेन आपको जो न्यूक्लियस है, इट लुक्स सिमिलर टू स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, लेकिन इसमें जो है ये सेल्स ही 2-3 लेयर में। जो ऊपर वाले सेल्स है
वो अपने नीचे वाले सेल्स के ऊपर है, वो सारे बेसमेंट मेम्ब्रेन को नहीं टच कर रहे हैं। और ये जो है ये डक्ट्स में ये जो 2 लेयर, ये हमारा स्वेट ग्लैंड का क्रॉस सेक्शन है राइट साइड पे, ये स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल दिखा रहा है। 3-4 लेयर में जो सेल्स हैं वो डक्ट को कवर कर रहे हैं। अब जो ग्लैंड्स होते हैं वो हम लोग को जानना है कि एक तो जो हमारा प्रोटेक्शन और एब्जॉर्प्शन कर ही रहा है, बट ग्लैंड्स का मेजर फंक्शन इज सिक्रीटरी फंक्शन। जो वो लोग ग्रुप्स में या तो फिर सिंगल सेल में रह सकता है ग्लैंड, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में है वो सिंगल सेल गॉबलेट सेल, बस एक सेल है जो कि वो खुद ही म्यूकस प्रोड्यूस करके सिक्रीट कर रहा है, तो दैट इज स्टिल अ टाइप ऑफ ग्लैंड, इट्स अ यूनिसेल्युलर ग्लैंड। और फिर बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स साथ में मिलकर अगर बड़ा ग्लैंड बनाते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड या पैनक्रियाज या जो भी, तो वो हमारे बड़े टाइप के ग्लैंड हुए। 3 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और पैराक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो जो सिक्रीशंस है वो डक्ट के थ्रू वहां पहुंचा रहे हैं, जैसे हमारे स्वेट ग्लैंड्स है स्किन पर, वो स्वेट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उधर ही पास में ही डक्ट से पहुंचा दे रहे हैं, उसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, या फिर डक्ट वाले ग्लैंड्स होते हैं। ये हमेशा डक्ट्स बनाते हैं जैसे ट्यूब्स, वो ट्यूब से पहुंचा रहे हैं जहां पर भी उनका जो टारगेट मॉलिक्यूलर सिक्रीशन को पहुंचाना है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं इनके डक्ट्स नहीं होते हैं, ये कहीं दूर दूर तक हमारे हॉर्मोन्स को पहुंचाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो इनका सिक्रीशंस है वो डायरेक्टली ब्लड में गिरा देते हैं और फिर ब्लड उसको पूरे बॉडी में जहां ट्रांसपोर्ट करना है वहां ट्रांसपोर्ट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं क्योंकि उसमें डक्ट नहीं है। हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके जो हॉर्मोन्स निकल रहे हैं वो पूरे बॉडी में जा रहे हैं, बस पास में ही डक्ट के थ्रू नहीं जा रहे हैं। तो ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हुए। और तीसरे टाइप का ग्लैंड है पैराक्राइन, इसमें भी कोई डक्ट नहीं होता है, लेकिन इसके सिक्रीशंस जो है बस सेल के बाहर निकल जा रहे हैं और खुद ही वो डिफ्यूजन के थ्रू आसपास लोकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, उनको हम लोग पैराक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। हाँ, अब जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो डक्ट से काम करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन आप लोगों को जानना है। एक्सोक्राइन जो यूनिसेल्युलर होता है वो हमारा गॉबलेट सेल है, जो सेल में ही वो उधर ही रिलीज कर रहा है, दैट इज गॉबलेट सेल। और जो मल्टी सेल्युलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है उसमें 2 टाइप के होते हैं, या तो हम एल्वियोलर या एसिनर, एसिनर एल्वियोलर दोनों सेम ही होता है। जब अगर जैसे ऐसे बॉल जैसा अगर कुछ बन रहा है तो उसको हम लोग एल्वियोलर कहते हैं, लेकिन ट्यूब जैसा रहता है तो ट्यूब्यूलर कहते हैं। सिंपल ट्यूब्यूलर जो सबसे पहला वाला है वो सिंपल ट्यूब्यूलर है, उसमें नीचे एक ट्यूब जैसा एरिया है और एक डक्ट से वो बाहर निकल रहा है, तो बस एक ग्लैंड एक डक्ट, दैट इज अ सिंपल ट्यूब्यूलर। नेक्स्ट वाला हमारा सिंपल ब्रांच्ड ट्यूब्यूलर, 2-3 ऐसे जो ट्यूब्यूल्स हैं वो सब मिलकर एक डक्ट बना रहे हैं और एक डक्ट से बाहर जा रहा है, तो वो हमारा सिंपल ब्रांच्ड हो गया। जो पर्पल वाला एरिया है वो डक्ट है, जो पिंक वाला है वो सिक्रीटरी पोर्शन है, वहां सारे सेल्स सिक्रीट कर रहे हैं मटेरियल्स। सिंपल कॉइल्ड ट्यूब्यूलर हमारा जो थर्ड वाला है, वो सिंपल एक ट्यूब जैसा ही है बट इट इज कॉइल्ड। और फिर सिंपल में हमारा अगर नीचे ट्यूब के बदले इफ इट इज लाइक अ बैग, देन इट्स सिंपल एल्वियोलर एंड सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर। जो हमारे ऊपर वाले लाइन में जो लास्ट के 2 हैं, सिंपल एल्वियोलर एंड सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर। जो कंपाउंड होते हैं उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे एरियाज से जो डक्ट्स हैं वो सारे छोटे डक्ट्स मिलकर फिर एक बड़ा डक्ट बना रहे हैं। जब एक सिंगल डक्ट नहीं होके बहुत सारे डक्ट्स मिलके बड़ा डक्ट बना रहे हैं उसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। अब उसमें भी वो या तो ट्यूब्यूलर हो सकते हैं या एल्वियोलर हो सकते हैं, और कंपाउंड ट्यूब्यूलर, कंपाउंड एल्वियोलर। जो लास्ट वाला है वो हमारा कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वियोलर है, उसमें कुछ ग्लैंड जैसे ट्यूब्यूल्स जैसे दिखते हैं और कुछ ऐसे बैग जैसे एल्वियोलर दिखते हैं। ये सब अलग अलग टाइप के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हुए। ग्लैंड्स को हम लोग और कई तरह से भी क्लासिफाई करते हैं। दूसरा तरीका जो क्लासिफाई करने का हुआ वो हुआ सिंपल ग्लैंड्स एंड कंपाउंड ग्लैंड्स। जो हमने अभी किया डायग्राम में, सिंपल मतलब कि सिंगल डक्ट, जैसे हमारे गैस्ट्रिक या स्वेट ग्लैंड्स है वो बस एक एरिया है, एक डक्ट है
और वहां से सिक्रीशन निकल रहा है, दैट इज अ सिंपल ग्लैंड। कंपाउंड, जो अलग अलग छोटे डक्ट्स मिलके बड़ा लार्जर डक्ट बना रहे हैं, और उसके एग्जांपल है पैरोटिड ग्लैंड एंड पैनक्रियाज। और ये चीज हमने पहले भी किया, ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स और एसिनर या एल्वियोलर। ट्यूब्यूलर जो ट्यूब शेप का सिक्रीटरी एरिया है, और इफ इट इज राउंड या सैक शेप का, देन इट इज एन एल्वियोलर ग्लैंड। किस टाइप का सिक्रीशन हो रहा है उस हिसाब से भी हम लोग ग्लैंड को क्लासिफाई करते हैं। उसमें हम लोग करते हैं मीरोक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन। मीरोक्राइन जो है उसमें जो सेल्स हैं वो अलग अलग सिक्रीशन के वेसाइकल्स बनाकर इट थ्रोज इट आउट। जो हमने पिछले चैप्टर में किया था एक्सोसाइटोसिस, वैसे होता है कि वो वेसाइकल्स बनाकर साइटोप्लाज्म से अटैच हुआ और फिर वो बाहर सिक्रीट हुआ। ये हमारे मीरोक्राइन ग्लैंड्स हुए। इनका दूसरा नाम एक्राइन या एपिक्राइन ग्लैंड्स भी है, और जो इंटेस्टाइन में गॉबलेट सेल्स है वो सारे मीरोक्राइन है। एपोक्राइन जो होते हैं, ये जो हमारे सारे सिक्रीशन है वो सेल के ऊपर के पार्ट में चले जाते हैं और सेल का पूरा ऊपर का पार्ट निकलकर सिक्रीट हो रहा है, देन इट बिकम्स एन एपोक्राइन ग्लैंड एंड द एग्जांपल इज मैमरी ग्लैंड। और होलोक्राइन ग्लैंड में पूरा का पूरा जो सेल है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और सिक्रीशंस बाहर डक्ट में निकल जाते हैं। इसका एग्जांपल है सेबेशियस ग्लैंड। एक और टाइप का क्लासिफिकेशन, किस टाइप का सिक्रीशंस निकल रहा है उस हिसाब से हम लोग ग्लैंड्स को या तो सीरस ग्लैंड्स कहते हैं या म्यूकस ग्लैंड्स। जो सीरस जो होता है वो वाटरी सिक्रीशंस रहता है, जैसे पानी जैसा अगर सिक्रीशन निकल रहा है दैट इज सीरस। और म्यूकस जो है वो म्यूकस ग्लैंड से थिक जेल जैसा जो सिक्रीशन निकलता है वो म्यूकस ग्लैंड्स होता है। मेन आप लोग को जानना है कि सीरस ग्लैंड में जो सिक्रीशंस है वो प्रोटीनेशियस रहता है, हाई इन zymogen granules एंड मेड आउट ऑफ प्रोटीन मटेरियल। जो सेल्स रहते हैं वो यूजुअली ट्रायंगुलर रहते हैं, जैसे और जो न्यूक्लियस है वो बेस में है, तो फिर वो इजिली हमारे सीरस सॉल्यूशंस जो ऊपर से वो वेसाइकल्स बन के निकल रहे हैं, जब हम उनको स्लाइड में देखते हैं तो फिर वो HNE स्टेन में ऐसे डार्क पिंक कलर के आपको वो स्टेन दिखेगा, थिन वाटरी सिक्रीशन, और एग्जांपल इज पैरोटिड ग्लैंड। जो हमारे म्यूकस ग्लैंड्स है उनका जो सिक्रीशन है दैट इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, वो जेल जैसा रहता है, म्यूकोइड मटेरियल। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो कॉलमनर सेल्स से सिक्रीट होते हैं, जहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो बेस के पास है, और जब आप इसको स्लाइड में देखेंगे तो वो स्टेन नहीं करता है, HNE स्टेन वो स्टेन नहीं होता है, इसलिए वो आपको एम्प्टी एरिया जैसा दिखेगा। जैसे हम लोग इंटेस्टाइन का जो क्रॉस सेक्शन देखे थे उसमें बीच में एम्प्टी जो एरियाज दिख रहा था, दोज वर ऑल गॉबलेट सेल्स, वो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। और अनदर एग्जांपल इज सबलिंगुअल ग्लैंड। ये स्लाइड में जो पहला है ये हमारा सीरस एसिनाई है, पैरोटिड ग्लैंड का क्रॉस सेक्शन है। ये आपको अलग अलग जो मेन स्टेन कर रहा है, बीच में जो है जो सिक्रीशंस है वो पिंक कलर का स्टेन कर रहा है। सेल्स का बाउंड्री आपको उतना नहीं दिखेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो सारे सेल्स है ये ट्रायंगुलर इन शेप है, आपको बस न्यूक्लियस जो साइड में वो दिख रहा है, और बीच में जो पिंक मटेरियल है वो सीरस सिक्रीशन है। ये दूसरा वाला जो है ये हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड है, इसमें दोनों सीरस और म्यूकस दोनों दिख रहा है आपको। जो सीरस है वो डार्क पिंक स्टेन करता है, और जो म्यूकस है वो स्टेन नहीं करता है, तो वो खाली दिखेगा आपको। जब आप एक्सोक्राइन ग्लैंड का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो उसमें कुछ चीजें हैं जो मेन है। एक, जो पूरे ग्लैंड का बाहर का एरिया रहता है, पूरे ग्लैंड को कवर करता है, उसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं। फिर हमारे सारे अलग अलग टाइप के डक्ट्स रहते हैं उसमें, और डक्ट्स के बीच में कनेक्टिव टिश्यू जो रहता है उसको हम लोग ट्रेबेक्युलम कहते हैं, या फिर बीच का कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें सारे ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स जाते हैं। जो डक्ट्स हैं, ये जो सबसे छोटा वाला जो पार्ट है वो फॉलिकल है, लोब्यूल है, जो बहुत सारे लोब्यूल्स मिलकर और बड़ा लोब्यूल बनाएंगे और उसके बाद फिर पूरा ग्लैंड बनाएंगे। तो जो डक्ट्स होते हैं वो जो सबसे छोटे वाले डक्ट्स रहते हैं वो हमारे इंट्रालोब्यूलर
और वो इंटरलोब्यूलर है। जो इंट्रालोब्यूलर डक्ट से सबसे छोटे वाले वो मिलकर, ओह सॉरी, जो सबसे छोटे वो इंटरकैलेटेड है, वो लोब्यूल के भी अंदर जो सबसे छोटे जो एक एक सेल से निकल रहे हैं वो इंटरकैलेटेड है, और वो सारे स्ट्राइएटेड डक्ट्स बनाते हैं अगले लेवल पर। जो लोब्यूल से जो निकल रहा है वो इंट्रालोब्यूलर है, और अलग अलग लोब्यूल के बीच में जो ट्रेबेक्युलम या कनेक्टिव टिश्यू से जा रहा है वो हमारा इंटरलोब्यूलर डक्ट है। तो उसका नाम बस साइज के हिसाब से जो सबसे छोटे वाले यूनिट में है वहां से स्टार्ट होते होते जो छोटे वाले डक्ट्स मिलके थोड़े बड़े डक्ट बनाते हैं, फिर पूरे लोब्यूल का जो डक्ट है वो इंट्रालोब्यूलर जो लोब्यूल के अंदर है वो मिलकर फिर अलग अलग लोब्यूल का डक्ट जो मेन बड़ा डक्ट बना रहा है वो इंटरलोब्यूलर डक्ट है, कनेक्टिव टिश्यू से जाते हुए बनाता है। ये हो गया हमारा एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। कोई क्वेश्चंस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में? ओके, तो फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा स्लो है। तो करें हम लोग रुक भी सकते हैं, ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बस एपिथेलियल पे रुक कर फिर अगली बार कनेक्टिव टिश्यू करें। थोड़ा सा रेस्ट। क्या बोल रहे कुंदन सर, आपको सुनाई पड़ा? हमको ठीक से समझ में नहीं आ रहा। सामने आके बोलो ना, क्या बोलना है? अच्छा ठीक है, वापस जाके कोई स्लाइड अभी तक जो हम लोग किए, कोई स्लाइड वापस देखना है, हम वापस जा सकते हैं। सामने आके बोलो ना, पीछे में बोलो। क्या क्वेश्चन बोलो? क्या क्या हाँ मैम, वो लोग बच्चे बोल रहे थोड़ा स्लोली पढ़ाने के लिए, थोड़ा फास्ट हो जा रहा है। अच्छा, अब तो जो पढ़ा चुके वो वापस पढ़ाए क्या स्लो? नो 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 मैम, नो मैम। एक काम करते हैं, हम लोग वापस ऊपर से एक एक करके स्लाइड्स देख लेते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं, अगली बार हम लोग कनेक्टिव टिश्यू करेंगे। ओके ओके मैम। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू अगली बार करेंगे। एक बार वापस जाके आप लोग को धीरे धीरे रिवाइज करा देते हैं कि आज हम लोग क्या क्या किए। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा एपिथेलियल टिश्यू किए हैं। एपिथेलियल पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन है 4 टाइप का, हम लोग इस चैप्टर में बस एपिथेलियल और कनेक्टिव करेंगे, कनेक्टिव अगली बार करते हैं, और ये जो मस्कुलर और नर्वस है ये बाद में जब हम लोग वो सिस्टम्स करेंगे तब आएगा। एपिथेलियल टिश्यू मेन फंक्शन प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन। अलग हम लोग इसका क्लासिफिकेशन किए, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल में हमारा जो एक लेयर में है, और जो स्ट्रैटिफाइड है वो एक से ज्यादा लेयर में हो गया। मेन जो आप लोगों को याद रखना है, सिंपल सारे सर्फेसेस को कवर करता है। हमारा ऊपर का सर्फेस, अंदर का सर्फेस ये एपिथेलियम कवर कर रहा है। जो पेरिटोनियम है पेट में, एब्डोमिनल कैविटी में, उसको हम लोग मीजोथेलियम कहते हैं। हार्ट के अराउंड जो कवर कर रहा है वो एंडोकार्डियम है, और जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर वाला एंडोथेलियम। वो स्क्वामस हुआ, उसके बाद क्यूबॉइडल, कॉलमनर। ये हम लोग शेप के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं कि कौन सा स्क्वामस है, कौन सा क्यूबॉइडल, कौन सा कॉलमनर। और ये सारे जो एक लेयर में वो सिंपल है, एक से ज्यादा लेयर है तो वो कंपाउंड है। ये हमारा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का स्लाइड है। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, सिंपल क्यूबॉइडल ही है, एक लेयर है थायराइड फॉलिकल में,
तो ये एक लेयर सेल आपको न्यूक्लियस से पता चल रहा है क्यूबॉइडल है। और ये जो तीसरा वाला ये हमारा सलाइवरी ग्लैंड में सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम हमारे इंटेस्टाइन में भी रहता है। अगर सीलिया है ऊपर तो वो सीलिएटेड है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहाँ पर आपको दिख रहा है जो बीच बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वो गॉबलेट सेल्स है, जिसका म्यूकस सिक्रीशन रहता है, इसलिए वो स्टेन नहीं कर रहा है, आपको खाली स्पेस जैसा दिख रहा है। एक और टाइप होता है स्यूडोस्ट्रैटिफाइड, होता बस एक लेयर में है, सारे सेल्स नीचे बेसमेंट लेयर से चिपके हुए रहते हैं, लेकिन सब सारे सेल का हाइट अलग रहता है, सब ऊपर तक नहीं पहुंचते। ये स्यूडोस्ट्रैटिफाइड हमारा एपिडिडाइमिस में न्यूक्लियस से आपको लगेगा कि मल्टीपल लेयर्स है, बट है बस एक लेयर ऑफ सेल्स। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये आपको याद रखना है कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर में है, उसको वहां पर हम इसको यूरोथीलियम कहते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड है क्योंकि वो स्ट्रेचेबिलिटी देता है यूरिनरी ब्लैडर को। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, अब जो स्ट्रैटिफाइड है उसमें मेन जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस है वो दो टाइप के होते हैं, केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड हमारे स्किन का पूरा जो सरफेस है, ऊपर का लेयर डेड है, मेन स्किन का सरफेस इज केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। और जो दूसरा टाइप जो लिविंग हुआ हमारे टंग में या माउथ के अंदर या कॉर्निया में, ये ऊपर का लेयर लिविंग सेल्स है, दैट इज नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। केराटिनाइज्ड जो है वो सेल में केराटिन है, स्ट्रैटिफाइड क्योंकि मल्टीपल लेयर्स है सेल का, स्क्वामस क्योंकि ऊपर वाले लेयर्स फ्लैट है, और एपिथेलियम क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू है। ये स्लाइड्स हुए नॉन केराटिनाइज्ड और केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का। तो जो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर और क्यूबॉइडल रहते हैं ये मेनली ग्लैंड्स में रहते हैं। इसका फंक्शन हम लोगों का सिक्रीशन, क्योंकि ग्लैंड में है तो सिक्रेटरी फंक्शन मेन है। सारे एपिथेलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे लूज कनेक्टिव टिश्यू रहेगा जहां पे ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक टिश्यू है, वो सारे उधर से डिफ्यूज करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू। ये हो गया हमारा स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर फेरिंग्स में, और ये जो गोल गोल है ये हमारा डक्ट है स्वेट ग्लैंड का, जिसमें स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स है। और लास्ट चीज जो आज हम लोग किए वो हम लोग किए ग्लैंड्स के बारे में। 3 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और पैराक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के बहुत सारे टाइप से क्लासिफिकेशन होता है। पहला क्लासिफिकेशन ये है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, पैराक्राइन। इसमें एक्सोक्राइन जो है वो डक्ट से पहुंचाएगा अपना सिक्रीशन, एंडोक्राइन सीधा ब्लड में डालेगा सिक्रीशंस और बॉडी में अलग अलग दूर पे उसका टारगेट है वहां जाएगा। और पैराक्राइन में डक्ट नहीं होता है, लेकिन वो अपना सिक्रीशन बस आसपास उसके अराउंड जो डिफ्यूजन से जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारा मेन है, जिसमें हमारे क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स रहते हैं। इन सब में इनका अलग अलग क्लासिफिकेशन रहता है। जो क्लासिफिकेशंस है, पहला है सिंपल और कंपाउंड। अगर एक ही डक्ट है तो वो सिंपल है, अगर मल्टीपल डक्ट्स मिलकर एक डक्ट बना रहे तो वो कंपाउंड है। ट्यूब्यूलर जो है उसका जो सिक्रीटरी यूनिट है वो ट्यूब शेप का है। एल्वियोलर जो है उसको एसिनर भी कहते हैं, एसिनर या एल्वियोलर, वो राउंड सैक जैसा जो है नीचे का। और सिक्रीशन के हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं मीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन। मीरोक्राइन मतलब जो हम लोग पिछले चैप्टर में किए थे एक्सोसाइटोसिस से, जो सिक्रीशंस है वो वेसाइकल्स बन के ऊपर साइटोप्लाज्म से अटैच हो रहा है और बाहर निकल रहा है। जो एपोक्राइन है वो ऊपर का सेल का ऊपर का पूरा पार्ट टूटकर निकल जा रहा है, तो वो एपोक्राइन है। एपेक्स से होता है जो सेल का एपिकल पार्ट या एपेक्स जो है वो पूरा निकलकर वो एपोक्राइन हुआ। और होलो मतलब पूरा पूरा का पूरा सेल, होल सेल, होलोक्राइन ग्लैंड्स, एंटायर सेल डिसइंटीग्रेट्स और सिक्रीशंस रिलीज होएगा। और another main way of classifying them is serous glands and mucus glands. सीरस का जो सिक्रीशन है वो वाटरी प्रोटीनेशियस सिक्रीशन रहता है, और म्यूकस का म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स रहता है। सीरस ग्लैंड्स ट्रायंगुलर शेप के सेल्स रहते हैं, और म्यूकस ग्लैंड्स लॉन्ग कॉलमनर सेल्स रहते हैं।
और ये बस हमने लास्ट में स्लाइड देखा सीरस और म्यूकस का। जो सीरस उसमें हमें सेल मेम्ब्रेन उतने अच्छे से नहीं दिख रहा है, बट ये जो सारे हैं ये ट्राइंगल शेप के सेल्स है, और बीच में जो पिंक कलर का सिक्रीशन है वो सीरस सिक्रीशन है, वो स्टेन करता है। जो म्यूकस है उसमें म्यूकस स्टेन नहीं करता है, बिल्कुल लाइट पिंक दिख रहा है आपको, या कहीं कहीं पे स्टेन नहीं है, बट जो सेल्स होते हैं जो साइड में वो कॉलमनर सेल्स रहते हैं, और बीच का सिक्रीशन इज म्यूकस सिक्रीशंस। जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक्सोक्राइन ग्लैंड का, हमारे जो छोटे छोटे जो ट्यूब्यूल्स है, एक एक जो सिंपल ट्यूब्यूल है वो सारे छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, फिर अलग अलग ग्रुप्स मिलके और बड़ा ग्रुप बनाता है, और फिर सबसे बड़ा ग्रुप बना के पूरा ग्लैंड बनाता है। तो जो ग्रुप्स है बीच में कनेक्टिव टिश्यू जो है वो उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करती है लोब्यूल्स में। जो कनेक्टिव टिश्यू जो सबसे ग्लैंड के सबसे बाहर में जो रहेगा, पूरे ग्लैंड को कवर करता है, उसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू है। कैप्सूल जो बीच में डिवाइड कर रहा है, अंदर का जो कनेक्टिव टिश्यू इसको हम लोग ट्रैबिक्यूलम कहते हैं, और वो डिवाइड कर रहा है डक्ट को अलग अलग लोब्यूल्स में। तो जो सबसे छोटे वाले डक्ट्स रहते हैं उनको हम लोग इंटरकैलेटेड डक्ट्स कहते हैं। इंटरकैलेटेड डक्ट्स मिलके बनाते हैं स्ट्राइएटेड डक्ट्स। स्ट्राइएटेड डक्ट्स लोब्यूल के अंदर के डक्ट्स बनाते हैं इंट्रालोब्यूलर। अलग अलग लोब्यूल के जो इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स हैं वो सब मिलकर इंटरलोब्यूलर डक्ट्स बनाते हैं, वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू में रहते हैं, और फिर वो मेन डक्ट बनाकर सिक्रीशन बाहर जाता है। जो ट्रैबेक्युलम है वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें सारे ब्लड वेसल्स और नर्व या फिर जो डक्ट्स वगैरह के बीच में वहां पे हमारा बाकी कनेक्टिव टिश्यू रहता है। बस फिर अगले क्लास में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू करेंगे, ठीक है? अब वापस जाके रिवाइज करेगा आप लोग अपने बुक से, ठीक है? यही सब चीज आपके बुक में भी है, तो बुक से भी पढ़िएगा, उसको वापस जाके रिवाइज करिएगा, तब वो दिमाग में रहेगा, नहीं तो फिर सब निकल जाएगा। हर क्लास में बहुत इंफॉर्मेशन है, सब न्यू इंफॉर्मेशन है, तो फिर जाके पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है? ओके देन, थैंक यू, चलिए। Thank you.